Namaskaram everyone. Welcome back to our channel. I hope you all are doing well and after a long time, yes. So if you are new to my channel, then first subscribe my channel and press the bell icon and you will get all the notifications by this. And in this last video, what we have done, so in last video we have discussed about modern trends in Indian art जिसमें हमने पढ़ा था painting, sculptures and graphic prints. And in this video we'll discuss about we can say sample question paper and important questions. So this is sample question paper for applied stream released by CBSE, and also marking scheme also released by CBSE. And you can also say this important questions for term 2 exam for painting, applied, sculpture and also graphics, because all your syllabus is same for all streams, whether it is painting, applied, sculpture. So let's start today's video. So this is your question paper, this is your sample paper released by CBSE, subject applied arts and code 052 यानी 52, class 12th, session 2021 to 2022, term 2 के लिए. So इसमें जो maximum time आपको मिलता है वो है 60 minutes जो कि है 1 hour, and maximum marks of course 15 marks. So these are some general instructions. So there are 6 questions and all questions are compulsory. Question number 1, 2, 3 and 4 are of 2 marks, and you have also choice in internal choice in one question of these questions. So 4 number जो है वो देखिए, question number 5 is 3 marks and question number 6 is 4 marks. So ये थे आपके सारे general instructions and you have to done 6 questions. So these are your questions, and you can also say the important, very important questions for term 2. So let's start with question number 1. So whose creation was men, women and tree? What is the medium of these work? So इसका जो आंसर है वो CBSE ने क्या दिया है, let's check out. So this is a marking scheme applied arts के लिए and for term 2. So question number 1 इन्होंने पूछा है कि men, women and जो tree है, ये जो हमारा जो आर्टिस्ट है यहाँ पे वो है के लक्ष्मण गौड़, एंड लिथोग्राफी इज़ द टेक्निक फॉर दिस प्रिंट. सो लिथोग्राफी जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल हुआ है. So let's see. So this is your men, women and tree. So ये इसका टाइम पीरियड, पूरी पिक्चर एंड ऑल द डिस्क्रिप्शन जो आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगी. सो डू चेक आउट. So move on to question number 2. Mention the names of any 2 graphic artists and their works. So ये भी आपका 2 marks का है. So marking scheme में दिया है देवी, मैन, वुमेन एंड ट्री, चिल्ड्रन एंड ऑफ वॉल्स. जितने भी आपके सिलेबस में ग्राफिक प्रिंट्स हैं सबके टाइटल्स विद देयर आर्टिस्ट. जैसे देवी यहाँ पे दिया है अ ग्राफिक प्रिंट बाय ज्योति भट्ट, और ब्रैकेट में इनका पूरा नाम भी लिख दिया गया है. सो ये ऑप्शन है. Men, Women and Tree by K. Lakshma God, Children by Somnath Hor and Off Walls by Anupam Sood. So इस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है ऑफ 2 marks. So next है क्वेश्चन नंबर 3. So क्वेश्चन नंबर 3 है what is the title of artwork done by each of the following. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट दिए गए हैं उनका जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं ये यहाँ पे इंक्लूडेड योर कोर्स ऑफ द स्टडी. कोर्स आपके जितने भी सिलेबस में ये आर्टिस्ट हैं इनके जो आर्ट वर्क्स हैं उनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है, लिखना है. सो यहाँ पे मार्किंग स्कीम के अनुसार यहाँ पे दिया गया है जैमिनी रॉय की आपकी जो आर्ट वर्क हैं वो है मदर एंड चाइल्ड. नेक्स्ट MF हुसैन, मदर टेरेसा. अमृता शेरगिल, हल्दी ग्राइंडर्स एंड राजा रवि वर्मा, राम वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन. सो ये जितने भी
मॉडर्न ट्रेंड्स के आपको मिल जाएंगे हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर, मॉडर्न ट्रेंड्स ऑफ इंडियन आर्ट, जिसमें पेंटिंग्स में सारी पेंटिंग्स हैं, राम एंड कुशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर्स एंड मदर टेरेसा। एंड स्कल्पचर्स में आपको मिल जाएंगे ट्रिम्प ऑफ लेबर, संथाल फैमिली, क्राइज अनहर्ड एंड गणेशा। इसके बाद ग्राफिक प्रिंट्स में मिलेंगे चिल्ड्रन, देवी ऑफ वॉल्स एंड मैन, वुमेन एंड ट्री, और साथ साथ में इनकी विद पिक्चर डिस्क्रिप्शन, फुल डिटेल्स। सो यस, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे चॉइस मिलती है और है, या तो आपको ये अटेम्प्ट करना है या फिर ये अटेम्प्ट करना है। सो चॉइस में जो ऑप्शन है, आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट एंड मेंशन द इमोशंस that you have been revealed in the sculpture uncried. So cries unheard के बारे में आपको यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करना है, क्या इमोशंस आर्टिस्ट ने यहाँ पे डाले हैं अपने आर्ट वर्क के थ्रू, क्या रिप्रेजेंट करना चाहता है। सो ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। सो यहाँ से आप अपना जो मटेरियल है वो भी चेकआउट कर सकते हैं, दैट यू हैव योर राइट मटेरियल और राइट डिस्क्रिप्शन। सो इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। सो बंगाल स्कूल की जो मेन फीचर्स और वी कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछी गई हैं। So question number 4 is also of 2 marks and main features of Bengal school are as follows. So आपको ऐसे इसी तरह points बना के लिखना है। So examiner को भी easy रहेगा and आपको भी easy रहेगा। So Bengal artists give a sense of direction of the first art movement, यहाँ पे हमारा जो भारत में रहा है वो उसके बारे में, एंड दे शोड द कॉन्फिडेंस इन द ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बाय द गिविंग द इंडियंस अ न्यू कल्चर कॉन्शियसनेस। सो इस तरह से यहाँ पे पॉइंट्स बना बना के आपको लिखना है। जैसे सेकंड पॉइंट में इन्होंने बताया है, द बंगाल आर्टिस्ट अडॉप्टेड न्यू टेक्निक्स यहाँ पे अडॉप्ट की थी, वाटर कलर टेक्निक्स अडॉप्ट की थी यूरोपियन स्टाइल्स में, एंड वॉश टेक्निक का यहाँ पे ज़रूर बिल्कुल मेंशन करना है। वॉश टेक्निक इंडिया में थ्रू बंगाल आर्टिस्ट बंगाल स्कूल लेके आए। एंड पहले जो हमारे आर्ट वर्क्स हुए हैं पुराने प्री हिस्ट्री या हिस्ट्री से लेके, उनका भी यहाँ पे आपको जिक्र करना है। एंड चाइनीज़ क्लॉथ पेंटेड एंड जापानीज़ वुड कट स्टाइल थीम्स, जो भी माइथोलॉजी, रिलीजन्स, एपिक्स पे वर्क हुआ है वो सारा का सारा मेंशन करना है। So during this period, all types of painting includes religious, social and historical events, birds and animals, landscapes were painted. And last point में यहाँ पे दिया है, the colors are soft without shadow and conventional perspective यहाँ पे शो किया गया है। majestic scene है of space का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेंटिंग में वो भी अच्छे से दर्शाया है। atmosphere and काफ़ी इसमें लीनर डेलिकेसी दिखाई है। रिदम एंड ग्रेस ऑफ अजंता। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 था आपका 2 मार्क्स का, और इसको डिस्क्राइब किया गया है 5 पॉइंट्स के थ्रू। सो ये आपको ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और उसको कितने वर्ड लिमिट्स में डिस्क्राइब करना है। सो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5 मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमें 5 पे चलना है। ओके, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंटिंग शिव एंड सती। और ये यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, which anguishes has the painter disclosed in the painting named Journey's End? So question number 5, शिव एंड सती। तो शिव एंड सती की जो पेंटिंग है
सो द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेंटिंग शिव एंड सती, सो ये आता है हमारे बंगाल स्कूल से एंड बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से. सो हमने पढ़ा है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ बंगाल स्कूल एंड इट्स पेंटिंग, मेन फीचर्स ऑफ बंगाल स्कूल्स एंड अप्रिसिएशन ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि ये जो हमारी पेंटिंग्स हैं ये सारी पेंटिंग्स पढ़ी हैं. एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट. सो पहले शिव एंड सती की बात करते हैं. सो शिव एंड सती जो आर्टिस्ट हैं इनके वो है नंदलाल बोस एंड मीडियम है पेपर पे इसको बनाया गया है. दिस इज़ योर पेंटिंग एंड circa 1947 AD एंड जो कलेक्शन है यानी ये पेंटिंग अभी फ़िलहाल है NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली. सो डिस्क्रिप्शन की बात करें सो नंदलाल बोस जो आर्टिस्ट हैं एंड आर्ट वर्क है शिव एंड सती. सो दिस इज़ अ माइथोलॉजिकल इवेंट वेयर लॉर्ड शिवा एंड हिज वाइफ सती यानी कि जो फ़िलहाल जो पार्वती हैं उनके बारे में इसको दर्शाया गया है. दिस ड्रामेटिक डिपिक्शन ऑफ ऑफसेट पेपर यूजिंग मोनोक्रोम इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे. सो देख सकते हैं दिस इज़ मोनोक्रोम इफ़ेक्ट जो कि एक ही कलर का लाइट डार्क शेड्स दिखा के किया जाता है. मोनोक्रोम मतलब मोनो मीन्स वन यानी सिंगल एंड क्रोमेटिक यानी कि क्रोम यानी कि कलर. सो सिंगल कलर से ही यहाँ पे वेरियस शेड्स एंड डिफरेंट टोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल है. जैसे कि यहाँ कुछ डार्क शेड्स हैं, इधर कुछ लाइट है, बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है तो बॉडी थोड़ी सी लाइट है. सो दिस इज़ मोनोक्रोमेटिक इफेक्ट. सैड मूड यहाँ पे शिव और सती का जो है जो दिखाया गया है बहुत ही दुखद घटना हो गई है एंड फेस जो है इनके बहुत ही फेडेड है एंड पूरा का पूरा यहाँ पे इनका जो डिस्क्रिप्शन है आपको लिखना है. सो यस, सो ये जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज़ गिवन बाय CBSE मार्किंग स्कीम जिसमें कि इन्होंने 7 पॉइंट्स को कवर किया है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में. सो ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज़ ऑफ 3 मार्क्स एंड 7 पॉइंट्स. सो पॉइंट्स देख लीजिए यहाँ पे कि शिव एंड सती इज़ अ ब्यूटीफुल पेंटिंग बाय नंदलाल बोस, इसमें कोई शक नहीं है. एंड इट शोज़ अ माइथोलॉजिकल इवेंट. जैसा कि मेरी वीडियोज़ में था वैसे ही हम, क्योंकि डिस्क्रिप्शन देखो सेम आती है एंड जो मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ आपको नोट करने हैं. एंड ऑलवेज एक्सप्लेन इन पॉइंट्स. सो आपको मार्क्स मिलने में इजी रहेगा एंड एग्जामिनर को समझने में इजी रहेगा कि आपने कौन कौन से पॉइंट्स को यहाँ पे उठाया है. तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि माइथोलॉजिकल इवेंट पे बेस्ड है ये पेंटिंग एंड ऑफ लॉर्ड शिवा एंड हिज वाइफ सती या फिर पार्वती को हम ब्रैकेट में कर सकते हैं क्योंकि पेंटिंग में टाइटल है शिव एंड सती. सो यू हैव टू प्रेफर सती नेम. एंड दिस इज़ अ ड्रामेटिक depiction of offset paper using yellow, brown, violet, red colors का यहाँ पे इस्तेमाल है. इन कलर्स से एक ही शेड को लाइट डार्क किया गया. अब ये नहीं है कि रेड कलर इसमें कहीं से अलग से दिख रहा है. एंड इन द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर द लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन एंड येलो कलर हैज़ बिन यूज. ठीक है. सो ये सब यहाँ पे ऐसे आप डिस्क्रिप्शन इसकी कलर्स की देंगे. सो पिक्चर पेंटिंग के बारे में बता दिया, वो किस इवेंट पे बेस्ड है वो बता दिया, इसके बाद कलर्स कैसे यूज़ किए हैं वो बता दिया. एंड देन इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर अब इनकी जो फिगर है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि वो सैड मूड में है या बैठी है, सिटिंग पोजीशन में है या स्टैंडिंग है कैसी. उसके बाद इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है इनके फेशियल पे फेस पे क्या एक्सप्रेशंस हैं, अबाउट देयर फेशियल एक्सप्रेशंस. सो सती हैज़ अ फेडेड फेस हेल्पलेसली एंड स्ट्रेचिंग बोथ आर्म्स से उसको शिव ने जो है वो सपोर्ट किया है, उठाया हुआ है. एंड सती विच इज़ लेइंग ऑन हिज लेफ्ट नी और बहुत ही अनकॉन्शियस स्टेट में वो हैं. और उन्होंने क्या वेयर किया हुआ है, नेकलेस, ईयरिंग्स, आर्मलेट्स यानी कि बाजूबंद, ब्रेसलेट्स एंड रेड लाइट कलर साड़ी.
सो ये उनकी पोजीशंस एंड फेशियल एक्सप्रेशंस एंड क्या क्या उन्होंने पहना है उसके बारे में। एंड पॉइंट नंबर 6 में इनको बताया है एन ऑरा, जो दिव्यता जो छलकती है, ऑरा ऑफ लाइट जो येलो कलर की यहाँ पे दिखाई गई है शिव के बिहाइंड द हेड ऑफ शिवा। सो दिस इज़ ऑरा। ये जो सर्कल यहाँ पे होता है, जो तेज जिसे बोलते हैं, दिस इज़ ऑरा, इसके बारे में वो बात कर रहे हैं। 7 एंड लास्ट पॉइंट, द फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग लुक्स लाइक अ ब्लरी विजन। सो फोरग्राउंड कौन सा है? दिस इज़ योर फोरग्राउंड। सो पेंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है नॉर्मली। Yes, it is visible. Okay. So पेंटिंग में हम बांट देते हैं 3 पार्ट्स में। सो ये वाला जो पार्ट है ये हुआ हमारा फोरग्राउंड यानी कि आगे वाला भाग, और ये हमारा जो पार्ट है बीच का यानी कि मिडल। सो मिडल बैकग्राउंड या मिडल ग्राउंड, फोरग्राउंड, एंड दिस इज़ बैकग्राउंड। सो ये हुआ हमारा फोरग्राउंड, ये हुआ हमारा मिडल ग्राउंड, एंड ये हुआ हमारा बैकग्राउंड। सो ये यहाँ पे बात कर रहा है फोरग्राउंड की। सो फोरग्राउंड को ये कहता है कि बहुत ही ब्लरी विजन है। सो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ब्लर विजन है। सो दिस वाज योर लास्ट पॉइंट। इसी के ऑप्शन में, इसी क्वेश्चन के ऑप्शन में इसने बताया है कि आप डिस्क्राइब करें जर्नीज एंड को। सो दिस इज़ योर जर्नीज एंड, जो कि पिक्चर है, पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर की, एंड आर्टिस्ट यहाँ पे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। पीरियड इनका भी है मॉडर्न एंड सिरका यानी कि टाइम पीरियड ही होता है। ये है 1937 AD। सो मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा एंड वॉश। सो इस बार जो है वो अलग अलग टेक्निक्स एंड मीडियम्स आपको याद रखने हैं। टर्म 1 जैसा नहीं है कि सब में सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करना है। ओके, सो मीडियम है वाटर कलर ऑन पेपर एंड टेक्निक यहाँ पे है टेम्परा एंड वॉश। एंड शिव एंड सती का जो कलर है, पेंटिंग का जो कलर आप बताएंगे दैट इज़ सीपिया। सेपिया कलर आप यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। सो दिस इज़ जर्नीज़ एंड पेंटिंग, और ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है जर्नीज़ एंड की। फर्स्ट पब्लिश हुई थी बंगाली मैगज़ीन प्रवासी में। ओके, सो हमारे देख लेते हैं CBSE द्वारा इसमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सो यहाँ इन्होंने दिए हैं मेन पॉइंट्स, जो कि हैं 4 पॉइंट्स में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सो जर्नीज़ एंड वाज अ फेमस पेंटिंग मेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। सब्जेक्ट मैटर इनका रहेगा लॉर्डेड कैमल इन द फोरग्राउंड। अब यहाँ भी फोरग्राउंड की बात की गई है। इन द सीन ऑल अबाउट टू फॉल। तो चलते हैं फोरग्राउंड की तरफ। सो ये है यहाँ का फोरग्राउंड। फोरग्राउंड में जो है क्या बताया इन्होंने कि फोरग्राउंड इज सीन अबाउट टू फॉल। वो ऐसे हो रहे हैं कि जो कैमल है उसकी जर्नी का एंड होने वाला है, और वो फोरग्राउंड पे नीचे जो बेस है उस पे एकदम गिरने वाला है, और पेंटिंग में तो गिर ही चुका है। ओके, इम्प्रेशन ऑफ डेजर्ट हैज़ अ वेरी मिस्टिकल इफ़ेक्ट हुआ है। कंपोजिशन की बात करें, क्या क्या कलर्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, देन रेड, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, इस तरह के कुछ कलर्स हैं। फॉर गिविंग द सनसेट, इसमें जो शेड्स हैं वो आप बोल सकते हैं विद वॉश टेक्निक के साथ। The artist has shown sufferings of the weak, tired, thirsty and hungry camel. उसकी क्या क्या सफरिंग्स हो गई हैं, वो कमज़ोर हो गया है, भूखा है, प्यासा है, थक चुका है एकदम। एंड विच हैज़ बीन शॉन हिज लिस्टलेस बॉडी।
by half open eyes as his journey has come to the end. So ऐसी उसकी कंडीशन हो गई है, बिल्कुल इसकी जो आइज़ है वो हाफ ओपन है एंड हाफ क्लोज. देखिए फेस से ही पता लग रहा है बिल्कुल कि ये जो कैमल है ये अब इसकी जो जर्नी है उसका एंड होने वाला है, मतलब ये जो है अब डेथ के बहुत करीब है. He depicts the animals exploitation, जो हमारे एनिमल्स के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका जो हरण होता है उसके ऊपर, एंड उसके जो ऑनर के द्वारा हो रहा है वो दिखाया है. कैसे? क्योंकि उसने जो है उसके अकॉर्डिंग, कैमल के अकॉर्डिंग ज़्यादा उस पर वेट जो है वो डाल दिया है, और जिससे वो संभाल नहीं पा रहा है और उसकी जर्नी का एंड होने वाला है. बिल्कुल थक चुका है, वो भूखा है, प्यासा है. ये कंडीशंस क्या दिखाती हैं कि कैसे उसके जो ऑनर है उसको ट्रीट करते हैं, उस पर क्या क्या अत्याचार हो रहा है. स्टिल द एनिमल रिमेन्स फेथफुल टू हिज ऑनर. उसके बाद भी जो कैमल है, जो एनिमल है, वो अपने ऑनर के लिए फेथफुल रहता है, उसके लिए ट्रस्टफुल रहता है. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि आपको यहाँ पे देखो इसने पूरी सब्जेक्ट मैटर, कंपोजिशन, जर्नीज एंड उसके आर्टिस्ट करके भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि ये आर्टिस्ट है. सो पूरे के पूरे यहाँ पे अंडरलाइन एंड डेफिनेशंस पूरी अच्छी तरह से किया है. क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं. This is your last question. Give a brief description of the compositional arrangement of Radhika. So Radhika की तरफ हम अब चलेंगे. So Radhika is also in our Bengal school paintings. So ये है Radhika's painting. राधिका की जो पेंटिंग है ये है उसकी पिक्चर, एंड बहुत ही सॉफ्ट जो है वो पेंटिंग से कहेंगे काम है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है. यहाँ पे राधिका की फिगर है जो अपने दोनों हाथों में लोटस बड़े बड़े लेके खड़ी हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में है, और उनकी जो गर्दन है वो बेंड हुई है टुवर्ड्स द ग्राउंड और बेस. इसके जो बैकग्राउंड में है एक लैम्प यहाँ पे दिखाया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा. पेंटिंग के बारे में बात करें, अबाउट दिस डिस्क्रिप्शन से पहले, सो ये है आर्टिस्ट AR चुगताई की पेंटिंग, जो कि पीरियड है मॉडर्न, एंड इट्स 1940 AD. पेपर पे यहाँ पे मीडियम है पेपर, एंड टेक्निक है टेम्परा एंड वॉश. सो दोनों मिक्स करके यहाँ पे बनाया गया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो इन NGMA, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. And this is your painting. सो डिस्क्रिप्शन की बात करें, सो पेंटर का नाम बताएंगे, उसका टाइम पीरियड बताएंगे, एंड टेम्परा एंड टेक्निक वो हमने पहले ऊपर डिस्कस कर लिया है. राधिका इज़ ऑल्सो ड्रॉन इन द प्रोफाइल. द पेंटिंग राधिका इज़ ऑल्सो ड्रॉन इन अ प्रोफाइल. ठीक है, एंड द पेंटिंग जो राधिका है वो एक एज अ डेलिकेट है, बहुत ही लव लर्न है, एंड फ्लेक्सिबल बॉडी दिखाई गई है, ग्रेस है इसकी एक जो फिगर है उसमें. सो देखते हैं कि CBSE ने इसकी क्या डिस्क्रिप्शन दी है. सो यस 7 पॉइंट्स में इसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. तो दिस इज़ ऑफ 4 मार्क्स. 6 जो क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो है 4 मार्क्स का. सो राधिका इज़ वन ऑफ द ब्यूटिफुल वॉश पेंटिंग्स बाय MAR चुगताई, जो इनका पूरा नाम है, एंड इन दिस पेंटिंग अ वेरी डेलिकेट इंडियन लेडी शॉन कमिंग आउट ऑफ हर रूम, जो अपने रूम से बाहर निकलती आ रही, बहुत ही खूबसूरती और ग्रेस के साथ. हर फेस इज़ प्रोफाइल फेस उसका जो बनाया गया है. द हेड इज़ डाउन, सिर जो है वो झुका हुआ है. आइज़ आर इन ग्रेसफुल लुक, बहुत ही खूबसूरत आइज़. अब देखो यहाँ पे राधिका की आइज़ में एंड कैमल की आइज़ में क्या डिफरेंस है. उसकी आइज़ से देखने वाले को लगता है कि उसकी जर्नी का जो है एंड होने वाला है, एंड हर अबाउट राधिकाज आइज़ बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही खूबसूरत है.
and with sharp eyebrows. Her hair are in black brown combination reaching up to her back, जो उसकी कमर तक आ रहे हैं नीचे. सो यस, जो दुपट्टे में यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं. ओके, बहुत ही खूबसूरत आइज़ हैं, बहुत ही अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस हैं एंड शार्प आईब्रोज हैं एंड ऑर्नामेंट्स भी यहाँ पे उन्होंने पहने हैं. एंड सो ये सब अबाउट हर फिगर एंड कैसे उनका पोस्चर है वो सब हो गया. इसके बाद हर लेफ्ट फुट इज शोन फॉरवर्डिंग डायरेक्शन. जो उनका जो लेफ़्ट फुट है वो यहाँ से, इससे ये पता चलता है कि ये आगे बढ़ रही हैं, जा रही हैं, चल रही हैं. सब फॉरवर्ड है यानी कि आगे की तरफ ये हैं. एंड उन्होंने अपने दोनों हाथों में लोटस को लिया हुआ है. एक हाथ उनका ऊपर है और एक हाथ नीचे नॉर्मल है. एंड एक हनी बी भी वहाँ पे दिखाई दे रही है जो राइट हैंड वाला जो लोटस है उसके आसपास. एंड she also has red bangles in both of her hands and rings in her fingers. She is wearing a light purple lehenga with a dark blue prints उस पे हैं. एंड रेड जो ब्लाउज़ है वो रेड है. येलो ओढ़नी यानी कि येलो दुपट्टा उन्होंने लिया हुआ है विद अ ब्राउन बॉर्डर, जिस पे कि ब्राउन कलर का बॉर्डर है. सो ये सारी उनकी जो कपड़ों की यहाँ पे विशेषताएं हो गई, क्या क्या उन्होंने कैसा कैसा पहना है. एंड विद उन्होंने एक पेंडेंट भी पहना है, थ्रेड नेकलेस भी पहना है, ब्यूटीफुल पेंडेंट है. पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने बताया है, दिस मीन्स द आर्टिस्ट हैज़ गिवन एवरी सिंगल डिटेल्स ऑफ ऑर्नामेंट्स. ठीक है, जो भी उन्होंने इतना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन इसका किया है. सो आर्टिस्ट ने पूरे ध्यान से इस पेंटिंग को बनाया है और एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से यहाँ पे शो किया है. क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 में इन्होंने बताया है अबाउट द बैकग्राउंड. जैसे कि बताया था मैंने, बैकग्राउंड में एक लैम्प दिखाया है एंड पेंटेड बाय द आर्टिस्ट अलोंग विद द लैम्प शेड. सो उसकी वो है छाया भी वहाँ पे दिखाई दे रही है. दैट लुक्स लाइक रॉयल गार्डन लैम्प. जैसे रॉयल गार्डन में होते हैं लैम्प, वैसा ही ये रॉयल लैम्प दिखाई दे रहा है. विद एवरी सिंगल, इसकी भी पूरी सिंगल डिटेल यहाँ पे इसको बनाया है. पूरा एक एक इस यहाँ पे जैसे देखो लटकन है, इसके कुछ वायर्स हैं, ये यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया जल रहा है और नीचे भी ये कुछ ऐसे वायर से लटक रहे हैं. सो पूरा इसको भी डिटेल और डिस्क्रिप्शन पूरी साथ में दी हुई है. और क्या दिखाया है कि फ्लेम विद अ बर्निंग स्मोक भी है उसका. एंड अ स्मॉल अम्ब्रेला शेप, उसके ऊपर जो उसका कवर होता है दैट इज़ ऑल्सो देयर. जो उसकी लैम्प की चेन होती है दैट इज़ ऑल्सो देयर. एंड द बैकग्राउंड इज़ मेड ब्यूटिफुल बाय द फ्यूजन ऑफ रेड येलो ब्लैक कलर्स, जो कि ऊपर जाके बिल्कुल मिक्सअप हो जाता है, एक ब्लरी एंड बहुत ही ब्यूटिफुल इफेक्ट देता है. The whole composition is giving a beautiful impression due to its rhythmic form. काफ़ी rhythmic है and flexible है. Rhythmic and flexible means this is straight line, बिल्कुल straight है, flat है, अकड़ी हुई है. And this is flexible, इसमें एक flexibility है and एक grace है. So ये यहाँ पे बताया गया है, एक rhythm है. सो जैसे अगर ये फिगर पूरी, इसका हेड जो है इनका वो एकदम स्ट्रेट होता, बट यहाँ पे क्या है, एकदम ऐसे ये रिदमिक लाइंस हैं. इनका हाथ भी ऐसे यूँ मुड़ा हुआ है, ये हाथ भी ऐसे मुड़ा हुआ है. सो ये इनका पैर आगे की तरफ. सो सारी जो लाइंस हैं इनकी, जो फिगरिस्टिक लाइंस हैं वो काफ़ी रिदमिक है, मोमेंट में है, स्ट्रेट नहीं है, मोमेंट में है वो. और ये अभी कहाँ है, एनजीएम में, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट. सो दिस वाज योर, you can say, important questions for term 2 and also you can say applied arts के लिए अच्छा सैम्पल पेपर by CBSE. सो ये जो पेंटिंग है सभी स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको देखनी है, वेदर यू आर इन पेंटिंग और अप्लाइड और स्कल्पचर और ग्राफिक्स, क्योंकि सिलेबस है सबका सेम है.
सो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी इसके थ्रू, एंड आपका कंटेंट जो है वो भी चेक हो जाएगा. सो या, देयर वाज सम important questions for you, and your best and full preparations. Stay connected with me. Thank you so much. मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में.